Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle, and the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy. Today the target is to take the chapter of Bill of Exchange, which is a part of 12th standard syllabus Maharashtra Board accountancy subject. One step ahead. Do remember, अगर आप ये चैनल के साथ में लगातार जुड़े हुए हो तो आने वाले 4 लेक्चर्स इस चैप्टर के काफ़ी खास प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आपको दिलाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है आप एक तरीके से बोल सकते हो कि थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने अभी तक क्या सीखा है मुझसे, ओके, कि हर क्वेश्चन में एक ड्रॉवर और एक ड्रॉई होता है। या तो आप ड्रॉवर की किताब में सॉल्व करते हो या तो ड्रॉई की किताब में जर्नल एंट्रीज। ये तकलीफ सबसे ज़्यादा होगी अगर आपको जर्नल करना है, लेजर करना है, ड्रॉवर भी सॉल्व करना है और ड्रॉई भी सॉल्व करना है। ये सारे परिस्थिति में या सिचुएशंस में तो होता नहीं है, बट हाँ कुछ सिचुएशंस में ज़रूर होता है। आज और आने वाले 3 लेक्चर्स मैं ऐसे क्वेश्चंस को पूरा करूँगा, सॉल्व करूँगा, जिसमें आप कैलकुलेशन के माध्यम से या ड्रॉवर ड्रॉई या जर्नल लेजर, सारा जो खिचड़ी है एक साथ में आने वाला है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है आने वाले आज और आने वाली 3, ये आप आपके टेक्स्ट बुक में मार्क कर सकते हो कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। आज ऊपर, शालिनी ओज 26,000 टू आनंद। ये जो पहला सेंटेंस है ना, इसका मतलब क्या है? एक शालिनी है, एक आनंद है। शालिनी को आनंद को पैसे देने हैं 26,000। हाँ, बहुत बच्चे अगेन, क्योंकि ना जब पढ़ते हैं तो समझने में परेशानी होती है। सर इसकी क्या एंट्री आएगी? इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना ही कहा जा रहा है, या शालिनी ऐसे बोल रही है, हाँ आनंद मुझे तुझे पैसे देने हैं 26,000, कबूल है, बस और कुछ नहीं। ये समझना है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं, कोई लेन देन नहीं है। ओज का मतलब क्या? अगेन मैं ये कबूल करती हूँ। शालिनी का ऐसा कहना है कि मुझे तुझे पैसे देने हैं। अभी क्योंकि आनंद को पैसे लेने हैं और आनंद को पैसे मिले तो वो आनंद हो जाएगा, उसको एक प्रूफ की ज़रूरत है। आनंद को प्रूफ की ज़रूरत है, शालिनी को नहीं।
अगर आप आगे पढ़ो, आनंद ड्रॉज अ बिल फॉर 21,000 ऑन शालिनी। आनंद एक बिल ड्रॉ करता है, तो फिर यहां पे समझ में आता है कि आनंद ड्रॉवर है, तो शालिनी ड्रॉई। आगे की कहानी में पढ़ता हूं, बट अगर आप थोड़ा नीचे आओ लास्ट के 1 या 2 लाइन में, यहां पे क्या दिया गया है, गिव जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज तो हम हमेशा करते हैं। इन द बुक्स ऑफ आनंद, तो आनंद तो ड्रॉवर हुआ अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो हमको ड्रॉवर के बुक्स में जर्नल करना है, करीबन 1.5 या 2 पेज तो लेता है। एंड प्रिपेयर आनंद अकाउंट, मतलब लेजर, इन द बुक्स ऑफ शालिनी। तो ये अपने दिमाग की ट्यूनिंग कर लो कि मुझे इन द बुक्स ऑफ आनंद भी सॉल्व करना है और इन द बुक्स ऑफ शालिनी भी सॉल्व करना है। मतलब जल्दी से मैं आपको याद दिला देता हूं कि डायग्राम जो होता है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कोई एंट्री बाय हार्ट ना करूं, डायग्राम के माध्यम से पढ़ाऊं। मेरे पीछे है ड्रॉवर का डायग्राम, तो ड्रॉवर है आनंद, सेल्स, कैश, बिल, रिसीवेबल और इंटरेस्ट। ये मैडम है शालिनी, थोड़ा गुस्से में लग रही है। ये इस्तेमाल करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे इन द बुक्स ऑफ आनंद। और क्वेश्चन के थोड़े आगे जाकर हमको हमारा कैरेक्टर बदलना है और फिर हमको शालिनी बनना है। तो शालिनी बनेंगे तो दुकान बदल जाएगा। तो आनंद को बीच में रखा है, ये शालिनी का दुकान है जिसमें परचेस है, कैश है, बिल पेएबल है, इंटरेस्ट और खास नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस में अगर गलती नहीं कर रहा, आने वाले 2 और लेक्चर्स के लिए मैं रिपीट करूंगा, मैं ये आपको दिखाऊंगा कि देखो ये नोटिंग चार्जेस है, इसे ड्रॉवर की किताब में ऐसे लिखो, ड्रॉई की किताब में वैसे लिखो। ओके, वहाँ पे जो विक्रम आपको दिखते हैं वो विक्रम बाबा बाद में आ जाएंगे, बट ये डिफरेंस है ड्रॉवर ड्रॉई के डायग्राम का। और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और आपको ये बोलूंगा कि आप डायग्राम बनाओ, कुछ बाय हार्ट मत करो, ये उल्टा रिवर्स कुछ बाय हार्ट मत करो। आप डायग्राम बनाओ, आप एरो बनाओ, आपको चुटकी बजा के डेबिट क्रेडिट आएगा। और इससे जो समझदारी आती है डायग्राम से, वो एक लेक्चर के लिए नहीं होता है, एक महीने के लिए नहीं होता है, आपके 12वीं के लिए नहीं होता है, आपके लाइफ के लिए होता है। ये बेस्ट तरीका है। आगे द बिल, हाँ आगे कहा, सॉरी, 21,000 draws for 21,000 on Shalini and received the balance by a cross check। शालिनी को आनंद को 26,000 देने हैं, 21,000 का एक बिल बनाया आनंद ने, तो 5,000 आई होप आपको समझ में आता है कि बाकी है। तो वो बाकी के 5,000 के लिए आनंद ने क्या बोला शालिनी को, चेक दे दो 5,000 का, डिस्काउंट नहीं है। हाँ, तो ये थोड़ा अगेन अलग है, क्रॉस चेक। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू आनंद, ये नॉर्मली होता है। ऑन द सेम डे, अभी डेट तो बोला नहीं है ना, हम 1 2 3 4 लिखेंगे। आनंद एंडोर्स्ड द शालिनीज एक्सेप्टेंस टू विक्रम। आनंद ने क्या किया, जो बिल शालिनी से आया था, विक्रम नामक किसी को एंडोर्स किया। एंडोर्स का मतलब बिल उठा के दे देना, विक्रम अभी आप रखो, आप इसके मालिक। ओके, क्यों एंडोर्स किया जाता है, अगेन ये कोई दया धर्म नहीं है, हमें विक्रम को 21,000 देने हैं, तो पैसे के जगह पर हम उसे एक बिल दे रहे हैं, ये मैं डायग्राम में आपको बता दूंगा। ऑन ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म्ड आनंद दैट शालिनी डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस। हम आनंद है, विक्रम हमारे एक तरफ है, विक्रम हमको बोलता है, हमारे कान में खुसफुसाता है, अरे वो शालिनी ने पैसे ही नहीं दिए, डिसऑनर्ड। ओके, एंड नोटिंग चार्जेस 280 वर पेड। तो विक्रम ने उसका कंप्लेन किया, वो नोटरी पब्लिक के पास गया जो सरकारी वकील होता है, और उसको बोला आप मेरा कंप्लेन लिखो, ये शालिनी पैसा नहीं देती है। तो वो नोटरी पब्लिक को, जो एक वकील होता है, उसको पैसे देने पड़े 280। नोटरी या नोटिंग चार्जेस के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए,
ड्रॉवर इसे अलग से नहीं लिखता, स्टेप 1 में इंक्लूड कर देता है, रिन्यूअल के 4 स्टेप में स्टेप 1 में, क्योंकि ये ड्रॉवर का कसूर नहीं है, ड्रॉई को ये लिखना पड़ता है, नोटिंग NOTING चार्जेस, क्योंकि उसको तो बोलना पड़ेगा, हाँ, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हाँ यार मेरी गलती है तो मुझे तो अभी नोटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। सो आज और आने वाले 2 लेक्चर्स में कम से कम नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉई क्या करता है, कैसे लिखता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, आगे। आनंद देन ड्रू अ न्यू बिल फॉर 1 month ऑन शालिनी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट 650। ये जो एक लाइन है ये रिन्यूअल के बारे में आपको जानकारी देता है। इसके अंदर कुछ जानकारी है, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ स्टेप्स के बारे में बताया है, कुछ स्टेप्स के बारे में नहीं बताया। हम जब जैसे ही आ जाएंगे रिन्यूअल पे तो हम वापस से ये पढ़ लेंगे। फिर कहा ऑन द ड्यू डेट शालिनी ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस बाय चेक। तो जब दूसरा बिल, नया बिल का पेमेंट का टाइम आया, शालिनी ने बड़े आसानी से पेमेंट करा दिया, चेक दिया। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको जब कैश मिलता है ना, आपको कैश की जगह पे बैंक लिखना है, क्योंकि चेक आया है तो बैंक लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी। आप कैश नहीं लिख सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझो। इतना ही बोल रहा हूँ सर, ऊपर क्रॉस चेक दिया, नीचे चेक दिया, क्या करे? अरे ऐसा समझो कि कैश मिला, बस वो कैश के वर्ड को निकाल दो और वहां पर बैंक लिख लो। पहला काम प्रॉब्लम का, जिससे आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमें आनंद के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करने हैं, तो मेरे साथ में आप अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें। जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है, आपने पूरा लेक्चर देख लिया, समझ लिया, फिर खुद से टेक्स्ट बुक से ये वाला जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, हाँ, तो चलिए, मेरे पेन को मैंने निकाल दिया, अभी हम सॉल्यूशन की ओर। इन द बुक्स ऑफ आनंद जो ड्रॉवर है, तो ड्रॉवर का जो डायग्राम है मैं वो यूज करने वाला हूं। तो क्वेश्चन पहला, शालिनी ओज 26,000 टू आनंद। कुछ नहीं करना, इंफॉर्मेशन, इसको पैसे देने हैं बस। हाँ, फिर एक्शन स्टार्ट होता है। पिक्चर होती है ना, मूवी में थोड़ी 3 घंटे 2 घंटे एक्शन ही चलता है। कभी कभी ऐसे सीन रहते हैं जो कोई कुछ नहीं बोल रहा, मतलब कोई डायलॉग भी नहीं है, और कभी कभी तो वो बड़े असरदार सीन होते हैं। तो आई रिपीट, सिर्फ डायलॉग है, मतलब डायलॉग भी नहीं है। हाँ, फर्स्ट लाइन, सेकेंड पार्ट, आनंद ड्रॉज अ बिल फॉर 21,000 ऑन शालिनी फॉर 3 months। आनंद ने एक बिल ड्रॉ किया, जो ये चैप्टर में तो हर प्रॉब्लम में होता है, आगे जाकर कहा, शालिनी ने एक्सेप्ट करके दिया। तो बढ़िया बात है, ये एंट्री तो हमको कितनी बार करना है। बिल रिसीवेबल टू शालिनी, आर फर्स्ट जर्नल एंट्री। डेट नहीं है तो चलो, डेट का बवाल नहीं है, डेट आने वाला है। ओके, एक लेक्चर के बाद में डेट आएगा तो डेट का बवाल भी आ जाएगा। सो बिल रिसीवेबल टू शालिनी 21,000। नरेशन कोशिश करो कि आपके लिए आप सिंपल ही रखो, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। इसके बाद ये आपको अंडरस्टैंड करना था कि शालिनी को तो देना था 26,000, शालिनी ने सिर्फ 21,000 का बिल दिया, तो चलो इतना का तो प्रूफ आ गया। बाकी के 5,000 का क्या? अगर आप ऊपर पढ़ो, एंड रिसीव्ड द बैलेंस 5,000 बाय अ क्रॉस चेक। तो हम लोग शालिनी को नहीं छोड़ेंगे, आनंद तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आनंद क्या बोलेगा, नहीं भाई हमको भी तो क्या है, खुश होना है, बाकी का पैसा दो। हाँ, बट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आपको कैश मिला, आपको ये बोलना है कि आपको चेक मिला। चेक थोड़ी लिखना, मतलब कैश टू शालिनी के जगह पे कैश को हटा दो, आप बैंक लिख लो, तो उसका मतलब चेक हो जाता है। तो बैंक, तो मैंने दिखाया कि आपको कैश मिला, बट यस कैश नहीं मिला है, आपको चेक मिला है, क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक तो ऐसा चेक होता है जिसके वजह से पैसे सिर्फ आपको मिलेंगे।
अगर वो चेक का पे खो भी जाता है तो टेंशन की बात नहीं है, आपका नाम लिखा था, आप ही को पैसे मिलेंगे। हाँ, सिर्फ खाते में ये पैसे आते हैं। तो बैंक अकाउंट टू शालिनी बीइंग बैलेंस ऑफ द ड्यू अमाउंट, मतलब 26,000 का बैलेंस रिसीव्ड बाय क्रॉस चेक। दो जर्नल एंट्रीज, थोड़ा अलग है आज और आने वाले, जैसे मैंने बताया ना 3 लेक्चर्स, प्रॉब्लम थोड़े अलग है। ओके, आगे सेकेंड लाइन, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू आनंद, वो हमने कर लिया। उसके बाद ऑन द सेम डे आनंद एंडोस्ड शालिनीज एक्सेप्टेंस टू विक्रम, तो विक्रम नाम का कोई नया है और जो बिल हमें मिला है आनंद को, उसने बिल उठा के विक्रम को दे दिया। सिंपल, और कोई मारा मारी नहीं इसके अंदर। विक्रम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, थर्ड एंट्री। सो वेरी सिंपल, क्यों दिया विक्रम को बिल? क्योंकि हमको विक्रम को पैसे देने थे, तो उसके जगह पे हमने उसको बिल थमा दिया। बीइंग बिल एंडोस्ड, सिंपल। अभी ऐसा होना चाहिए कि आनंद बोलेगा चलो भाई अभी मेरे को टेंशन की बात नहीं है, अभी ये कहानी विक्रम और शालिनी के बीच में चलेगी और ख़त्म हो जाएगी। बट अगर शालिनी पैसे नहीं देगी तो फिर हमको वापस से पिक्चर में एंट्री मानना पड़ता है। आगे तीसरा लाइन, ऑन ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म्ड आनंद दैट, विक्रम हमें बता रहा है हमारे कान में या व्हाट्सएप या कॉल करके, दैट शालिनी डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस, शालिनी पैसे नहीं देती। जब ड्रॉई खास करके पैसे नहीं देता या देती है तो समझ जाइए कि आपको रिन्यूअल करना है, और रिन्यूअल में 4 जर्नल एंट्रीज होते हैं। ऊपर दिया है कैंसिल बिल, चार्ज इंटरेस्ट, कलेक्ट पार्ट पेमेंट, मेक न्यू बिल, ये हमने बहुत बार किया है। इसके आगे क्या कहा? तो रिन्यूअल ऐसे दिखता है, उसके ओल्ड बिल के 2 हिस्से कर देते हैं, 21,000 के हिस्से, एक तरफ पे कैश, एक तरफ पे न्यू बिल। अभी आपको ये पढ़ के समझना है कैश में कितना पैसा लेंगे, न्यू बिल मतलब थोड़ा और टाइम हम देने वाले हैं, उसमें कितना लिखा। नोटिंग चार्जेस क्यों लिखा? क्योंकि नोटिंग चार्जेस को स्टेप 1 में हमको जोड़ना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हम ड्रॉवर है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो 21,000 में हमने नोटिंग चार्जेस जोड़ दिया, नहीं होता तो हम नहीं जोड़ते। क्वेश्चन पढ़ ले, कहा एंड नोटिंग चार्जेस 280 वर पेड, तो हमने वो ऐड किया ओल्ड बिल में। आनंद देन ड्रू अ न्यू बिल फॉर 1 मंथ, नया बिल, एक और महीना, ऑन शालिनी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट, तो नोटिंग चार्जेस का 280 और इंटरेस्ट का 650। सवाल, बट इसमें तो उन लोगों ने पार्ट पेमेंट दिया ही नहीं कि थोड़ा पैसा अभी दो। सिंपल सी बात है, कोई आपको सीआईडी गिरी करने की जरूरत नहीं है, तो वो नहीं है। अच्छा, तो पार्ट पेमेंट है ही नहीं है, डैश। तो न्यू बिल कितने का बनेगा? तो देख भाई, न्यू बिल में पहली बात तो 21,000 आएगा, इसी में आपको नोटिंग चार्जेस लेना है, इसी में आपको इंटरेस्ट लेना है, तो टोटल ऊपर से नीचे न्यू बिल बन जाएगा 21,930। प्लीज नोट, स्टेप 1 में क्या आएगा? कैंसिल ओल्ड बिल। स्टेप 2 में क्या आएगा? चार्ज इंटरेस्ट 650। स्टेप 3 आएगा ही नहीं क्योंकि पार्ट पेमेंट तो नहीं है। स्टेप 4 मेक न्यू बिल, उसमें 21,930, क्योंकि आपने शालिनी से 1 रुपया भी लिया नहीं है, तो आप जब भी लोगे 1 महीने बाद आप सारा हिसाब क्लियर कर लोगे। ओके, स्टेप 1 मतलब बिल को कैंसिल करो, मतलब अरे रिटर्न करो, विक्रम को बोलो हमको दो, हम दे देंगे शालिनी को। शालिनी डेबिट, विक्रम क्रेडिट, इसमें नोटिंग चार्जेस जोड़ो मतलब 21,280। अगेन ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा आपको याद दिला देता हूँ। ओके, शालिनी अकाउंट आपको ये लेक्चर्स कंटिन्यूसली देखने हैं, ताकि जब भी मैं कुछ रिपीट करूँ तो मतलब मैं तो यही आशा करूँगा कि आपने पिछला लेक्चर देख लिया है। बीइंग बिल कैंसिल्ड फॉर रिन्यूअल इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, ये था स्टेप 1। नोटिंग चार्जेस अलग से नहीं लिखना, स्टेप 1 में जोड़ दिया। इसके बाद स्टेप 2 क्या होता है? वो इंटरेस्ट होता है, बड़ा सिंपल होता है। ये इंटरेस्ट शालिनी पे हमने डाल दिया, शालिनी डेबिट टू इंटरेस्ट 650, सिंपल है।
अगेन ज़्यादा डिफ़िकल्टी मत पैदा करो अपने दिमाग में, सिंपल एंट्री है, सिंपल एंट्री लिख लीजिए। शालिनी टू इंटरेस्ट, इसका मतलब है हमने इंटरेस्ट 650 शालिनी के सिर पे डाल दिया। शालिनी तेरी गलती, तू पैसा डिले कर रही है, तुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो चार्ज इंटरेस्ट का मतलब है इन्फॉर्म करना। जब आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको इन्फॉर्म कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया ना, चल अभी तैयार है पैसे देने के लिए, हाँ 10 दिन बाद दे देना, बट तुझे जानकारी दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मुझको तो पता ही नहीं था, नहीं, आपको बता रहे हैं। तीसरा स्टेप टेक्निकली होता है पार्ट पेमेंट, बट देन इस प्रॉब्लम में नहीं है तो नहीं है। चौथा स्टेप होता है न्यू बिल, तो हमने बिल बनाया, उसने साइन करके दिया, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। बिल रिसीवेबल टू शालिनी पूरा 21,930, पूरा 21,930। हाँ, तो मतलब 1 महीने बाद हम ये अपेक्षा करेंगे कि शालिनी हमें 21,930 रुपीज़ दे, थमा दे। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। ये हुए 4 स्टेप, वेल 4 नहीं थे, तीसरा स्टेप था नहीं, बट ये ऑर्डर में जाना है। इसकी आगे की कहानी कहा है ऑन द ड्यू डेट, सेकेंड लास्ट लाइन, शालिनी ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस। अरे बढ़िया है, तो उसने पैसे दे दिए, यस, चेक से दिए। मतलब देखो भाई, हमेशा डायग्राम दिखा देता हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो ड्यू डेट पे क्या हुआ, शालिनी ने हमें एक चेक दिया, समझो कि कैश आया, समझो 21,930, और क्योंकि ये 2 एंट्री का मिलाव होता है, कॉम्बिनेशन, हमारे पास कैश आया ऐसे सोचो, और हमने कस्टमर को उसका बिल दे दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये 2 एंट्रीज है, इसको जोड़ के हमने एक एंट्री बना दिया। ये मैंने आपको शुरुआत में बनाया है, ओके। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश मत कहो, कैश के जगह पे बैंक, क्योंकि चेक है ना, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये 2 एंट्री है, 2 को जोड़ के एक एंट्री हमने बना दिया है। तो ये हमारी इन द बुक्स ऑफ आनंद की लास्ट की एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, वो था नो, आई वुडंट से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि बैंक होता है डेबिट द रिसीवर, बट आपको सोचना है कि भैया कैश आया, कैश की जगह पे मैंने बैंक लिख लिया। हाँ, तो इसके बाद ये लास्ट की एंट्री थी। ये तो खुशखबरी है, हमें को हमारे पैसे मिल गए। एंड में इतनी मेहनत अगर आप करते ही हो तो मार्क्स कभी जाने नहीं चाहिए, ग्रैंड टोटल आप लिख लीजिए, ताकि एग्जामिनर आधा या 1 या पौना जितना भी मार्क्स है बिल्कुल इसके लिए कैंसिल नहीं करना चाहिए। 1,12,790, ये ऑब्वियसली डेबिट एंड क्रेडिट में सेम होना चाहिए। खुश मत होइए, किधर जाइए मत, क्यों, ये तो हाफ प्रॉब्लम है, हाफ। ओके, क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि यहाँ पे उन्होंने क्या आपसे कहा है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद कंप्लीट, एंड देन कहना है प्रिपेयर आनंद अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शालिनी। तो अगर आप सोचो कि ज़रूरत क्या है, ऊपर आनंद अकाउंट की ज़रूरत है, उसमें 2/2 इसको लेजर कहते हैं, बट उसके लिए आनंद के जर्नल एंट्रीज होने चाहिए। आपने तो इन द बुक्स ऑफ आनंद शालिनी का नाम लिखा है, तो शालिनी का लेजर बन सकता है। मतलब प्रोफेसर ने क्या गूगली डाल दिया, उसने आपको पहले सम सॉल्व कराया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, फिर ऐसा कुछ पूछा कि आपको इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई सॉल्व करना पड़ेगा। आपको आपका दिमाग का चैनल चेंज करना है और आपको ड्रॉई बनना है। और रफ वर्क में, मतलब कोई बड़ा आपको सजावट नहीं करना, कोई नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। रफ वर्क में जल्दी जल्दी आप ड्रॉई के एंगल से जो सम है वो सॉल्व करें, और उसके बाद में उसके हेल्प से आप आनंद अकाउंट बनाओ। तो राइट नाउ आनंद अकाउंट का टेंशन ना लो, बट जो जर्नल एंट्रीज करने हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ओके, इन द बुक्स ऑफ शालिनी बाय ड्रॉई, उस पे आपका ध्यान आप बनाए रखें। अच्छा, तो सम हम दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, बट इतने धीरे से नहीं, क्योंकि एक बार तो सॉल्व कर लिया है, अभी आपको कहानी भी पता है, अभी आपको कैलकुलेशंस भी पता है। शालिनी, मैं और आप दोनों शालिनी,
शालिनी ओज 26,000 टू आनंद। अच्छा, हमको ऐसे बोलो, हमको आनंद को 26,000 देने हैं। आगे, आनंद ड्रॉज अ बिल ऑफ 21,000 फॉर 3 months ऑन शालिनी। आनंद ने हमारे ऊपर एक बिल बनाया, हमने साइन करके दे दिया 21,000 का। आनंद अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल, ये है पहली एंट्री। रफ वर्क में जल्दी जल्दी आपको ये लिख लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली ना इसमें जो टाइम आप डालने वाले हो 5 मिनट हो सकता है, इसकी मार्क्स नहीं मिलेगी, बट हाँ उससे जो लेजर बनेगा उसके मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, ये हुआ पहला। तो अगर मैं कहानी आपको बता दूं, इसके बाद में आपने बाकी के 5,000 के लिए एक चेक दिया। मुझे क्वेश्चन ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ लिया है ना, एक क्वेश्चन हमने 2 या 3 बार पढ़ लिया है। तो ऐसे बोलो कि कैश दिया, बट कैश की जगह पे बैंक लिख लो। आनंद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आनंद अकाउंट डेबिट बाकी के 5,000 के लिए। नरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, नरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आगे की कहानी देखिए। फिर आनंद ने वो बिल विक्रम को दिया। अब सबसे बढ़िया बात इसके बारे में क्या है कि आनंद ने जो विक्रम को दिया है, जो दिया है, जो लिया है, आपको ये समझना है ये तो मेरी दुकान है। वो जो लेन देन हो रहा है दूर, ये जो लेन देन हो रहा है, इससे मेरा क्या वास्ता, मुझे क्या करना है? वेरी राइट, दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन डज नॉट इफेक्ट माई शॉप। देखो ना, मेरे शॉप को तो कोई छूता ही नहीं है। अगर कोई एग्जाम्पल ना, रास्ते पर कोई लड़की किसी लड़के को एक जोर का चाटा बजा के दे, तो लड़का पूछेगा ऑब्वियसली कि मैडम मैंने क्या किया, और लड़की बोले नहीं बस ऐसे ही, बस ऐसे ही। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आपने रिएक्ट किया, हाँ भाई मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ किया, तो फिर आप मुझे चाटा मार सकते हो, बिना वजह का थोड़ी होता है। उसी तरह तो यहाँ पे चाटाबाजी नहीं चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ दैट डज नॉट इफेक्ट माई बिजनेस, तो फिर मुझे वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डिसऑनर हुआ, तो उसके 4 एंट्रीज है, मतलब रिन्यूअल। हमको 3 करने हैं, पूरा तामझाम हमको पता है कैलकुलेशंस का। इम्पॉर्टेंट है कि जब आप पहला स्टेप करो, क्या है पहला स्टेप? वो विक्रम ने आनंद को बिल लौटाया, उससे हमको क्या करना है? हमारे पास कौन आया? आनंद आया, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो आनंद ने बिल हमको दिया, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट। मैं नोटिंग चार्जेस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि नोटिंग चार्जेस लिखना पड़ता है, ड्रॉवर ने नहीं किया, ड्रॉई को जरूर लिखना पड़ता है। स्टेप 1 में उसने स्टेप 1 में जोड़ दिया, हमको जोड़ना नहीं, हमको अलग लिखना है, अलग। ओके, तो बिल पेएबल का 21,000 कुछ है, और नोटिंग चार्जेस का अलग से 280 है। हमको अलग से वो खाता डेबिट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉवर क्या करता है नोटिंग चार्जेस के साथ, ड्रॉई क्या करता है नोटिंग चार्जेस के साथ। ये है फर्स्ट जर्नल एंट्री ऑफ व्हाट? रिन्यूअल प्रोसेस, विच इज बिल पेएबल अकाउंट डेबिट लिख रहा हूं मैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट, डिफरेंट ड्रॉवर थिंकिंग एंड डिफरेंट ड्रॉई थिंकिंग टू आनंद 21 to 80। तो आई रिपीट माई सेल्फ, हाँ, ये दोनों आप ध्यान से देख लो कि मैंने ड्रॉवर के किताब में नोटिंग चार्जेस को किस तरह हैंडल किया एंड ड्रॉई की किताब में किस तरह हैंडल किया है। लिखा है स्टेप 1 में, बट ड्रॉवर ने इंक्लूड कर दिया अमाउंट में, और ड्रॉई ने अलग से नोटिंग चार्जेस डेबिट किया। फिर 650 का इंटरेस्ट था, अगर आपको याद है। हाँ, तो आनंद ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, हमारे ऊपर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आनंद। एक बार आपने कहानी एक हीरो के नज़रिए से समझ लिया ना, तो हीरोइन को भी समझ में आता है, हाँ भाई मेरी कहानी तो वही है, बस मेरा एंगल अलग है सोचने का। इंटरेस्ट अकाउंट टू आनंद अकाउंट। फिर नया बिल, ओके, ये टोटल अमाउंट का था। ये नया बिल की एंट्री क्या आती है? अरे वही, आनंद ने हम पे बिल बनाया, हमने साइन करके दे दिया। ये एंट्री तो हमने पहले भी की है, आनंद अकाउंट टू बिल पेएबल, आनंद अकाउंट टू बिल पेएबल। तो वो हमारा 5th एंट्री है 21,930।
ये हुआ, थोड़ी थोड़ी हमने जल्दी किया। क्यों जल्दी किया? क्योंकि जल्दी करना है, ये रफ वर्क चल रहा है, ऑब्वियसली जल्दी करना है। लास्ट में क्या था, हमने शालिनी ने ये 21,930 दे दिया, चेक से दे दिया। तो ये है ऑनर की एंट्री, और वो दिखता कैसे है, कुछ इस तरह। हमने उसको कैश दे दिया, वेल कैश नहीं दिया, चेक दिया, तो कैश की जगह पे हम बैंक लिख लेंगे। उसने हमको बिल दे दिया, बिल पेएबल डेबिट, और टू कैश के जगह पे टू बैंक लिखना है, टू कैश के जगह पे टू बैंक लिखना है। तो ये है हमारा ड्रॉई की किताब में लास्ट एंट्री, बिल पेएबल डेबिट टू बैंक, कैश मत लिखना। एवरीथिंग दैट यू हैव डन मे बी फॉर द लास्ट 5 मिनट्स, कोई मार्क्स नहीं है, बट दोज एंट्रीज आर रिक्वायर्ड ताकि ये आनंद का अकाउंट बन सके, एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड। आनंद अकाउंट बना के दो। चलो भाई कोशिश करते हैं। जितने एंट्रीज में आनंद है, 1 2 3 में नहीं है, सॉरी है 4 5, सिर्फ 6 में नहीं है, बस 6 में नहीं है, तो उसके ऊपर के पोस्टिंग्स आपको करने हैं। ओके, पहला क्या है, आनंद अकाउंट डेबिट। सो आई रिपीट, हम लोग आनंद अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो आई रिपीट, हाँ, तो डेबिट कहाँ पे आया, वेल लेफ्ट हैंड साइड है। फर्स्ट लाइन खाली रखना, हमेशा फर्स्ट लाइन खाली रखना। ओके, टू बिल पेएबल, इसको पोस्टिंग कहते हैं। ओके, मतलब आपको पता है, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक्स इतना अच्छा नहीं था, तो जर्नल से हम जब लेजर में लिखते हैं तो उसको पोस्टिंग का नाम दिया जाता है। दूसरा, आनंद डेबिट फिर है टू बैंक, तो हमको लिखना है टू बैंक 5,000। तीसरा, टू आनंद मतलब क्रेडिट, तो आपको क्रेडिट में बिल पेएबल और नोटिंग चार्ज अलग अलग लिखना है। पहले आएगा बाय बिल पेएबल, उसका अमाउंट, और बाय नोटिंग चार्जेस, उसका अमाउंट। अगेन ये पोस्टिंग है, प्लीज नोट, ये इसी तरह से होता है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। चौथा, टू आनंद है मतलब क्रेडिट, तो हम बाय इंटरेस्ट लिखेंगे 650। एंड पांचवा, आनंद डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे टू बिल पेएबल 21,930। ओके, ये है पोस्टिंग। पोस्टिंग चुटकी बजा के होता है, हाँ, जर्नल चुटकी बजा के नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एंड में ढूंढ लो, डेबिट हैवी है, क्रेडिट हैवी है। देखो डेबिट इस प्रॉब्लम में हैवी है, ऊपर आप देखो तो 47,930। क्रेडिट में जो डिफरेंस आता है वो आपको फर्स्ट लाइन में लिखना है, क्योंकि आपको याद है पहले डायलॉग क्या था, शालिनी ओज टू आनंद। तो ये कैसे पता चलता है कि हमको आनंद को पैसे देने हैं? देखो शुरुआत में 26,000 का बैलेंस था, वो पूरी कहानी खत्म होने के बाद में हमको शुरुआत का फर्स्ट लाइन पता चलता है। बट किसी भी खाते में, मतलब ये आनंद का खाता है, अगर आप ऊपर ध्यान दो, अगर वो डेबिट में बैलेंस दिखाता है तो वो इंसान एक डेटर होता है, हमको पैसे लेने हैं। बट अगर वो क्रेडिट बैलेंस दिखाता है तो वो इंसान एक क्रेडिटर है, हमें पैसे देने हैं। तो इन दिस सिचुएशन आनंद वॉज अ क्रेडिटर, क्योंकि हमें ये बैलेंस पता चला है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में नॉर्मली आप फर्स्ट लाइन खाली रखो, क्योंकि अगर बैलेंस आता है तो नॉर्मली वो फर्स्ट लाइन में आएगा, या तो टू होगा या तो बाय। ओके, आई होप सारा तामझाम आपको समझ आ गया है। आने वाले 3 लेक्चर्स यही डायरेक्शन में जाएंगे, जर्नल करो लेजर करो, जर्नल करो लेजर करो, तो दोनों की तैयारी आप रेडी रख लेना। ओके, आशा करता हूं कि आपको सारा समझ में आ चुका है, और आप अगर पुराने हो तो इसका लिंक ज़रूर अपने अलग अलग सोशल मीडिया के द्वारा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लोगे। अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि यूट्यूब महाशय आपको नोटिफिकेशन दे सके कि स्टीवन सर मेक्स इट ईजी के चैनल पे आपके मतलब का लेक्चर अपलोड हो चुका है। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। आपका दिन मंगल में जाए, ऊपर वाले की मेहरबानी, ऊपर वाले की आशीष आपके ऊपर
हमेशा बनी रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस।